Thank you so much for tuning in. I'm Amita Balachandra. Now, there was a big bang announcement this morning by Prime Minister Modi saying that farm laws, all three farm laws, will be repealed. Now, he said, and I quote, in the parliament session starting at the end of this month, we will complete the process of repealing the farm laws, end quote. Now, this was a surprise for many people, including some farm leaders, is what I'm hearing. We will come to that. But remember, farmers have been protesting at the borders of Delhi since November last year. There were 11 rounds of talks that happened between farmers and the government that lasted until January this year, but nothing much happened because the farmers kept saying that they will not negotiate, that they will only leave the borders of Delhi once all the laws are repealed, and that's the only demand that they have. And until that happens, that they will not leave. That was what farmers had said, and now that's actually happened. Soon after this announcement, we saw many leaders, including the opposition, tweet about this and say that the farmers in the country have won. But there was one tweet that actually stood out, and that was farm leader Rakesh Tikayat, who said that the protest will continue until this is repealed in the parliament. And that's exactly what I want to find out right now. Deepak Lamba, who is the national vice president of Jai Kisan Andolan, joins us right now. We're going to talk about what's going to happen over the next couple of weeks. Will they wait until the parliament session, and only when it's repealed in the parliament will they then vacate the borders of Delhi? What is the next plan? Because they have other issues as well. From all of the tweets and comments that have come in from farm leaders right after this announcement, they say that they have other issues as well. So let's talk about that. Lamba ji, thank you so much for joining us. पहली बात तो मुझे ये पता करना है आपसे कि क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे फार्म लीडर्स आज सुबह? नहीं, ऐसा नहीं था कि ये सोचा जा रहा था कि आज कोई अनाउंसमेंट होनी है, लेकिन ये जरूर था कि जैसा आपको पता है कि बीच में भी एक बार बात आई थी कि सरकार कुछ सोच रही है, और कई बार ये बीच में ये भी लगता था कि सरकार अपनी तरफ से भी ये बातें मीडिया या उस पोर्टल पे डाल देते हैं, डलवा देते हैं, लेकिन हमारे को एज सच कोई ऐसा नहीं था इन्फॉर्मेशन कि आज एकदम से ये अनाउंसमेंट होने वाला है। लेकिन कुछ लोगों का, जैसा आपको पता ही है, इस देश में अक्सर मोदी जी जब किसी बड़े ओकेजन पे आके कुछ बोलते हैं तो कुछ लोग हमेशा प्रेडिक्शंस रखते हैं। पिछले ओकेजन्स पे भी रखा था कि कुछ बोलेंगे। आज उन्होंने जब शुरुआत की, फार्मर्स के बारे में काफी बोला, उन्होंने कई तरह की स्कीमें बताई जो बार बार बजट में भी वित्त मंत्री बोलते रहे हैं। तो वो बोलते हुए लास्ट के थोड़े से पार्ट में उन्होंने फिर इसको रिपील करने की बात बोली है, और एक जैविक खेती पर आय बढ़ाने के लिए एमएसपी पर कोई कमेटी बनाने का भी थोड़ा सा बोला है। तो हमारी तरफ से ये एक, मैं खुद कहूंगा कि सुबह सुबह एक सरप्राइज था। लोगों को ये जरूर लग रहा था कि एक पॉलिटिकल प्रेशर जरूर गवर्नमेंट के ऊपर है, क्योंकि अभी चुनाव का मौसम यूपी में आने वाला है। पंजाब में तो बीजेपी वैसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी भी रिजल्ट नहीं निकाल पाई है, उनके जरूर गठबंधन में उनका जरूर हिस्सेदारी रही है, लेकिन यूपी उनके लिए क्रूशियल है। ऐसा हमें पता था कि यूपी का प्रेशर सरकार को कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए तो मजबूर करेगा। तो आप यही बोल रहे हो कि इलेक्शंस, आई मीन काफी चर्चा हुई है ऑनलाइन भी, a lot of people in fact criticizing the government, saying that elections are around the corner, UP and Punjab, and hence this is coming at the right moment. Is that what farm leaders also think? देखिए, आपको ध्यान होगा हमारी भी पीछे काफी बार बात हुई। आपके ही शो पे मेरे साथ बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता एक दो बार रहे। तो जब भी कोई ऐसी बात अटकती है, जब उनके पास फैक्ट्स खत्म हो जाते हैं, तो वो एक ही बात बोलते थे कि हम चुनाव जीत के आए हैं। तो इस गवर्नमेंट के लिए चुनाव जीतना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और जब चुनाव की बात आती है, आपको पता है, देखिए 1 साल से तेल की कीमतें कैसे जा रही थी, और अभी एकदम से क्या किया गया। ये ठीक है कि 50 रुपए बढ़ के 10 रुपए घटा दिए, वो अलग बात है, लेकिन ये जो टैक्स में कमी थी ये तो पहले भी हो सकती थी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन पास आएंगे, इनको वो डिसीजन लेने पड़ेंगे जो कि जनता के लिए और देश के लिए, देश की जनता को महंगाई या जो किसान बैठा है आंदोलन पर, उसके लिए कुछ ना कुछ सोचते हुए इनको बोलना पड़ेगा। तो हमें ये उम्मीद जरूर थी कि यूपी इलेक्शन से पहले ये इनको करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी अपनी तरफ से तैयारियां कर रहे थे। जैसा आपको पता है कि 2-3 प्रोग्राम ऑलरेडी अनाउंस्ड थे, और इसका प्रेशर बनता ही है। लोकतंत्र की ये विशेषता है
कि आप दो अलग अलग स्फीयर्स में नहीं जी सकते। सरकार और जनता एक ही है, और बल्कि जनता ऊपर है, सरकार नीचे है। तो ये तो लोकतंत्र में होना ही है। So, Lamuji, explain to us then, why has it not been resolved up until now? आपने ये कहा कि इलेक्शन पास आ रहा है तो इसीलिए ये अभी होना ही था, लेकिन अभी तक क्यों नहीं हुआ? 11 राउंड ऑफ टॉक्स have happened between the farmers and the government. What has the government said until now? अब अभी तक जो हमारी जो डिमांड थी, देखिए हमने स्टार्टिंग की ही पहले ही दिन, जिस दिन आपको याद है कि 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे आए थे, तो उसी दिन डिमांड जो थी, जिस दिन एसकेएम बना, उसी दिन बड़ा स्पष्ट थी। डिमांड ये थी कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, रिपील किया जाए, और साथ में एमएसपी का जो अधिकार है, कानूनी गारंटी का जो अधिकार है, वो मिले। उसके अलावा दो डिमांड और थी, जो अपना पराली वाला संशोधन करने की बात हुई थी, दूसरा बिजली संशोधन जो अधिनियम है उसको वापस लेने की बात थी। तो ये डिमांडें इसके साथ मिलके पूरा हमारा जो एसकेएम का डिमांड का जो नंबर है वो बनाता था। 4 डिमांड मेनली थी। आपको याद है कि पहले 6 या 7 दौर की वार्ता के बाद सरकार ने कहा था कि 2 डिमांडें हम मान लेंगे, लेकिन उसमें भी ये हुआ कि पिछले सेशन में वो दोनों चीजें, बिजली और पराली वाली चीजें भी लोकसभा में मतलब शेड्यूल की गई। तो ये जरूर था कि 2 पे उन्होंने एग्री कर दिया था, लेकिन वो भी सिर्फ वर्बल था। तो मुझे लगता है कि जो सरप्राइज वाली बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जो मीटिंगों में मंत्रिमंडल समूह, जिसमें 3 मंत्री अक्सर हमारे किसान नेताओं के साथ बात करते थे, हो सकता है उनके लिए भी आज सरप्राइज रहा हो। तो अभी से जाके नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स तक क्या होगा, क्या होने वाला है? बिकॉज वी नो दैट फार्मर्स हैव बीन सिटिंग एट द बॉर्डर्स from November last year. In fact, 26th marks the first anniversary also of the protest. Rakesh Tikayat has tweeted saying that until this is taken up in the parliament and repealed in the parliament, you will not leave the sites at the border. Is that what's going to happen? देखिए, हमारा जो ऑलरेडी शेड्यूल में था, मैं वो आपको बताऊं कि 26 तारीख को हम लोग बॉर्डरों पे सभी किसानों को इकट्ठा करने वाले थे। ये ऑलरेडी अनाउंस था, और ये हमने 9 तारीख को, इसी महीने की 9 तारीख को अनाउंस किया था संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग के बाद। और 29 तारीख को हमने ये कहा था कि हम पार्लियामेंट की तरफ 500 लोगों का जत्था लेके जाएंगे, और ये 500 लोग आज जाएगा, कल जो दूसरे 500 लोग जाएंगे वो इनसे अलग होंगे, और जो पहले दिन गए हैं वो वहीं रुकेंगे। तो ये हमारा प्लान था, जो कि हमने 29 तारीख को कंप्लीट करना था ये प्रोग्राम। तो इसी बीच में हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चे की एक मीटिंग थी, इनकी तैयारियों की समीक्षा, और इसके लिए जो माइन्यूट जो भी प्रिपरेशन है उसके लिए 20 तारीख हमने ऑलरेडी रखी हुई है। तो 20 की बात करें तो कल हमारा 20 तारीख को जो एसकेएम की मीटिंग है वो तो होनी ही है, ये हमारा शेड्यूल में था। लेकिन आज सुबह जैसे अनाउंसमेंट हुई है, तो उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चे के नेता भी आपस में बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ इमरजेंसी मीटिंग्स भी बुलाई गई हैं, और कल हमारी एसकेएम की मीटिंग भी है। तो ये देखिए, मतलब हमारा जो 1 साल से जो तरीका है किसी भी निर्णय लेने का, वो ये रहता है कि हम लोग बैठते हैं, मीटिंग करते हैं, उसमें अलग अलग संगठन के अलग अलग विचार है। जैसे अभी आपने एक ट्वीट का जिक्र किया, राकेश टिकैत जी के ट्वीट का, उसी तरह आज सुबह हम लोग 3 दिन से वेस्ट बंगाल में थे, और वहां हमने किसान महासभाएं की हैं। तो हम लोग भी, मैं खुद एयरपोर्ट पे था जब मुझे ये सूचना मिली कि प्रधानमंत्री जी ने ये अनाउंस किया है, तो हमने भी अपनी तरफ से वीडियो डाला। अपने संगठन की जो राय है वो हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रख देते हैं अक्सर संयुक्त किसान मोर्चे से पहले, और संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में भी हर संगठन अपनी राय रखता है। अब सामूहिक रूप से क्या निर्णय होता है ये तो मीटिंग के बाद ही पता लगेगा, लेकिन जो राकेश टिकैत जी की राय है वो उनकी संगठन की और उनकी है। सुबह हमने जो वीडियो डाला और हमारी जो प्रतिक्रिया हमने भेजी है, आपके मीडिया हाउस को भी मिली होगी, तो वो हमारी प्रतिक्रिया है। अब लेकिन एसकेएम का फैसला क्या होता है वो कल की मीटिंग अहम है, आज भी कुछ मीटिंग है। So you're talking about संयुक्त किसान मोर्चा का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हो। I'm just going to read out one paragraph from the statement. It says संयुक्त किसान मोर्चा has welcomed this decision and will wait for the announcement to take effect through due parliamentary procedures, which is something that Mr. Tikayat has also said. It says that SKM also reminds the Prime Minister that the agitation of farmers is not just for the repeal of the 3 black laws, but also for a statutory guarantee of remunerative prices
for all agricultural procedures and for all farmers. So आप यही भी बोल रहे हो कि बाकी सारा issues भी है, उसका भी the government has to take into consideration. That's what you're saying. जी, अभी देखिए, अनाउंसमेंट जो होती है उसमें आपने 3 मिनट में सारी चीजों को, 1 साल के आंदोलन को एकदम से निपटाने की बात कर दी, लेकिन एक्चुअल में जब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी, कोई लॉ रिपील हो रहा है या बन रहा है, तो उसके पीछे बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है, हर चीज की कंडीशंस हैं, अलग अलग क्लोज हैं। तो जब तक उन पे बात नहीं होगी कैसे होगा। अभी उन्होंने ये जरूर कहा, प्रधानमंत्री जी का जो आज का संबोधन था, उन्होंने कहा कि जो 29 तारीख से उनका जो शीतकालीन सत्र अभी शुरू होगा, इसी में वो इसको रिपील कर लेंगे, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला है। लेकिन फिर भी उसका प्रोसेस क्या होगा, कब तक कर लेंगे, वो डिटेल्स है। दूसरा, हमारी मुख्य मांगों में तो एमएसपी का भी था, एमएसपी का उन्होंने नाम जरूर लिया, और एमएसपी के साथ उन्होंने 5-6 तरह की चीजें जोड़ दी जो 2016 से पहले भी ये गवर्नमेंट करते आई थी। वो कहते थे कि भाई हम आय को दुगना कर देंगे, जीरो बजट खेती ले आएंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर देंगे, और इस पे एक कमेटी बनेंगी, फार्मर्स आएंगे, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि आएंगे, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि आएंगे, किसान भी आएंगे। हाँ, ये बात तो आप देखिए कि हरियाणा, पंजाब या सेंटर, जहां भी गवर्नमेंट कोई किसानों से संबंधित निर्णय, या जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के या हॉर्टिकल्चर के जो भी निर्णय लेती है, उसमें फॉर द नेम से एक किसानों को तो रखा जाता है, कुछ लोगों को उसमें शामिल किया जाता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर दे के ये भी कहा कि हमने ये जो लॉ लेके आए थे, इसमें बहुत से संगठनों से बातचीत की, बहुत से किसानों से बातचीत की, उसके बाद लाए। लेकिन आपको याद होगा कि 11 दौर की वार्ता से पहले हम हर बार मिलते थे और हम ये कहते थे कि एक भी ऐसे संगठन का नाम बता दीजिए जिससे आपने डिस्कशन किया हो। तो मुद्दा ये नहीं है कि किसानों को शामिल किया जाता है कि नहीं किया जाता। अभी जो एमएसपी की लाइन तो जरूर यूज की कि उस पर कमेटी बनेगी, लेकिन वो स्पष्ट होना बाकी है। मतलब आप 3 मिनट में 1 साल का आंदोलन का डिसीजन नहीं होता है। हमारे एसकेएम में तो नहीं हो रहा, क्योंकि एसकेएम में तो 3-4 दिन इस पे मंथन होगा, बातचीत होगी, गवर्नमेंट से भी कुछ इनपुट मांगे जाएंगे, फिर देखते हैं आगे प्लान क्या बनता है। लेकिन जो आपने अभी प्रतिक्रिया पढ़ी, वो प्रतिक्रिया लगभग सभी संगठनों की सामूहिक है। सबने इसी लाइन पे बात की है कि अभी डिटेल आने दीजिए, अभी हम इसका वेलकम करते हैं, एमएसपी का क्या होगा उसके बारे में बताइए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इसके अलावा कुछ माइन्यूट डिमांड्स भी रहती हैं। देखिए, जब आंदोलन चला, जब आप कहते हैं कि चलो हमसे गलती हुई, हम समझा नहीं पाए और इन कानूनों को वापस ले रहे हैं, तो इन कानूनों के इस आंदोलन में बहुत से हजारों किसानों के ऊपर केसेस भी लगाए गए हैं। उन केसेस का क्या होगा? दूसरा, यहाँ पे 700 से ज्यादा लोगों के शहीद होने की संख्या जो है 700 से ऊपर है, तो उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो पूरे 1 साल के आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तो इसको सिर्फ ये आज जो डिसीजन था वो ठीक है, वो ऐतिहासिक जीत है, और ये किसानों की नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरे देश के लोक संग्रह जो संघर्ष है उसकी जीत है। क्योंकि अकेले किसान काम नहीं कर रहे थे। आपने देखा होगा कि जब जनवरी से पहले यहाँ इतनी संख्या थी, उसको अकेले किसान संगठन मैनेज नहीं कर सकते थे। लोगों ने अपने आप आके, दिल्ली के लोग भी, पंजाब के भी, हरियाणा के भी, यूपी के भी, और बाहर से भी कुछ लोग आए आउटसाइड इंडिया, उन्होंने भी आके यहाँ सेवाएं की, यहाँ लोगों के लिए रोटियां बनाई, सब्जियां बनाई और कंबल बांटे। ये सारी चीजें, ये बेसिकली पूरे देश का ही आंदोलन मुझे दिखता था। तो मुझे लगता है कि ये जो जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, और ये होना भी चाहिए। और इसमें देरी हुई, देरी ना होती तो हो सकता है 700 वाली जो संख्या है वो कम होती, और लखीमपुर जैसी घटनाएं ना होती। जितना मतलब यदि इसको हम पहले ही यदि सरकार कर पाती। अभी ये ना कि यदि मान लो आपने करना ही था तो पहले किया जा सकता था, लेकिन चलिए आज उस बात पे नहीं जाएंगे। जो भी है किसानों की, लोगों की जीत है। Okay, so two things Mr. Lamba has mentioned here. One is that they may not have expected this to happen today, but they were expecting this to happen before the UP elections, considering it's coming up. And second is that for now, there are meetings that are taking place. Some of the things are not clear, including the cases of farmers. And perhaps things will be more clear as to whether the protest will continue beyond the parliamentary session as well. Because for now, the statement says that they will wait to take effect through due parliamentary procedures. And that's something that's going to happen. We'll have to see what really happens in the next 2-3 weeks, and things will be more clear, Mr. Lamba says, in the next couple of days. But thank you so much for joining us here and speaking to us.